As discussed last time when I started my presentation, I'll be covering these three agendas. One with respect to the labor laws which are applicable to an organization, how does it affect you? Secondly, what are the labor law reforms which are going to kick in from next financial year? And thirdly, with respect to your take-home salary. So all three topics are conjoined and will go hand in hand when I move with my presentation. So again, Pallavi, I go with my So yeah. So as I told last time जब Pallavi का appraisal हुआ था वो अपने desk पे वापस आने के बाद सोच रही थी कि take home तो increase हुआ नहीं. So it's story with every organization as I said, but how it's the same we'll get to know through the week. Yeah. So here again there was another cartoon slide. Employees बात कर रहे हैं कि HR is not putting in heed to the requests of the employees that take home be increased so that we can save through other modes also. We understand that there are social security benefits which the government wants to give to the employees statutorily, but still we want our take home to be increased because we also want to plan our investments and our savings accordingly as per our wishes also. But whereas the reality is that the HR is trying to manage all these laws. This is a list of 37 central laws which are applicable to an organization with respect to labor law compliances. Next slide. And these are the 18 rules which are applicable in the state of Chhattisgarh. With respect to labor laws, बाकी laws में आप देखोगे तो क्या होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया रूल मेकिंग पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. बट इन केस ऑफ लेबर लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है बट रूल मेकिंग पावर स्टेट्स के पास होती है. तो मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब करना, उसकी सीलिंग कब रिवाइज करनी, ऑल दीज पावर्स आर विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्दो द एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. विद रिस्पेक्ट टू न्यू लेबर लॉ कोड्स, ये जो नए लेबर लॉ कोड्स रिफॉर्म्स जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, why they are coming, there are few reasons I have listed. Firstly, that the existing laws are complex and archaic. Can you go back 2 slides? Yeah. So as I was discussing, अगर आप Employees Compensation Act, so it talks about if there is an accident or a hazardous event and something happens to the employee during his employment at the time of place of work, what compensation will be given. Now, Payment of Wages Act only talks about by what time you should give the payment. Minimum Wages Act talks about what should be the minimum wage. One thing I would like to clarify here: wage does not mean wages which are earned by daily wages to people or laborers who work in a factory. With respect to employees, also the definition under the labor law is wages because the laws are dating prior to independence also. So the word wages was only used in most of the cases. So it was complex because 5 चीजों के लिए 5 टॉपिक्स के लिए 5 अलग एक्ट बना दिए गए कि कब सैलरी पे करनी चाहिए, कितने टाइम में पे करनी है, उसके लिए एक एक्ट, मिनिमम कितना है उसके लिए एक एक्ट. तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता था और ओवरलैपिंग कैसे होता था. प्रोविजन सेकंड पॉइंट, वेजेस की डेफिनेशन जो है हर एक्ट में अलग थी. विद रिस्पेक्ट टू आपका पीएफ कटेगा वेजेस पे, वहां पीएफ में वेजेस की डेफिनेशन अलग है, आई कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ईएसआईसी में वेजेस की डेफिनेशन अलग है, ग्रेचुइटी में वेजेस की डेफिनेशन अलग है. तो हर एक कंपोनेंट को निकालने के लिए आपको वर्किंग वेजेस की अलग करनी पड़ती थी, व्हिच वाज अ डिफिकल्ट पार्ट on the part of organization also and difficult for employees also to understand their salary sheet, I would say. With respect to multiple forms, आपको कोई भी क्लेम करना है तो अभी क्या होता है काफी सब मल्टीपल और रिडंडेंट फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं. Although वो information आपके PFASIC पोर्टल में already captured है, but while claiming or withdrawing, for example, partial withdrawals or full withdrawal, whatever the situation may be, you have to fill the forms and give the same information which is already there with the portal. That is something which is going to go away from the next financial year. Then minimum wages for everyone. As I discussed, there is already a law regarding minimum wages, but it covers certain scheduled employments. 90% of the employments in India are covered, but now going forward, it will be minimum wages for everyone. That meaning to say any class of employee, irrespective of number of employees in the organization, a type of work, there would be a minimum wage for everyone going forward. Next. So the 47 acts which I said, out of those 29 laws,
are going to subsume in these 4 codes. These 4 codes have been passed by the central government, but state governments in case rules nahi leke aaye, and since the rules have not been notified yet, old laws are only in place. So जैसा मैं डिस्कस कर रहा था कि wages के रिस्पेक्ट में 4 टॉपिक्स हैं: पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। अब ये चारों वेजेस की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए एक कोड ऑन वेजेस बना दिया जाए। जो सोशल सिक्योरिटी के लॉज हैं, पीएफ, ईएसआईसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेच्युटी, ये सारों को एक कोड में, एक लॉ में पुट अप कर दिया जाए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि ट्रेड यूनियंस के रिगार्डिंग जो लॉज हैं उनको एक में पुट अप कर दिया जाए। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जहां हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं, जहां वर्किंग कंडीशंस के बारे में जो लॉज हैं वो सारे क्लब करके कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस लेके आए। नेक्स्ट, so now coming to an organization which is non-manufacturing and non-industrial in Chhattisgarh, then these 8 acts primarily would apply to that organization. That these are the relevant acts for discussion for this session today, because steel mint पे भी ये सारे provisions apply. So firstly, minimum wages act. So minimum wages act as of today is applicable on every scheduled employment. Here the meaning of wage is basic pay plus DA plus HR. Minimum wage for Chhattisgarh हर साल रिवाइज होता है, and in certain years it is revised half yearly also. So with respect to Chhattisgarh, also is divided in zones. So Raipur, Bhilai, Charoda, all these places are covered in zone A. With respect to those places, the 4 categories have been created. Highly skilled, 12,270. What does this mean? For a highly skilled person, basic pay plus DA plus HRA should be 12,270. These categorizations have been defined, and there has been given a guiding principle to identify whether that person will fall under which category: highly skilled or skilled or semi-skilled or unskilled. Right? And then this Minimum Wages Act also talks about normal working hours. So we all listen to this 9 to 5 thing everywhere. But if you see the law, it's 9 hours working. So it's not 9 to 5, it should be more. And then sorry guys to break this to you. With respect to work week, it's at 6 days a week. But now under the new code on wages, what changes are coming? Firstly, with respect to the minimum wages, अभी क्या है? State government prescribe करता है. But states arbitrarily prescribe कर सकते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी कंट्री में। एंड सेकेंडली जोन्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। अब बिलासपुर में काफी इससे कम हो सकता है। तो फॉर दैट इन द न्यू लॉ व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड इज सेंटर विल कम विद अ सीलिंग वेज, और सॉरी फ्लोर वेज। फ्लोर वेज दैट इज states have the power to prescribe minimum wage, but they cannot prescribe minimum wage below this floor level. So suppose that floor level is 9,000. So states के पास पावर है 9 के ऊपर मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब करने का, और 9 के नीचे नहीं जा सकते। राइट? नाउ वेज की डेफिनेशन इज wages definition I'll discuss later. Ignore the working hours. Now with respect to number of days, the law is flexible. It says you have to work 48 hours a week. So now an organization going forward, when this law is effective, can have either 6-day week culture with 8 hours per day, or 5-day week culture with 9.6 hours per day, and in fact 4-day week culture also with 12 hours per day. But I believe in Indian scenario, and even in international scenario, although there have been few countries which have been experimenting with this in the past few years, and certain countries have a success rate also in this. But I believe with respect to 4-day or 5-day week with so much number of hours, your work-life balance with respect to the first 4 days or 5 days of the week would not be that good that the organization or the employees would want to have a 4-day week culture, working for 12 hours a day, and then productivity issues and all those things would kick in. So my personal opinion that 6 days a week would be the standard norm as well, even after this flexibility is allowed to the organizations. Yeah. With respect to Payment of Wages Act, now this law says by what time you should receive your payment. Right? So it says the wage period first is defined. What is the wage period? It's maximum 1 month. So supposedly it starts from first of the date to ends on the last day of the month. Right?
in Steelmint's case, as I've been informed, it's 26 to 25th, right? So with respect to payment, so your wage period is 26th of a month to 25th of the next month. It's a 1 month period that's compliant. With respect to payment, it says by 7th of the day from the end of the month, right? So with respect to Steelmint, अगर 25th का month खत्म हो रहा है, तो वहां से 7 दिन, and as I've been told, वो first को जा रहा है, but आपका first से पहले 30th है, 31st का time भी, so your salary is credited. So that with respect to payment of wages. Now, mode of payment has been prescribed in this 1936 Act, which says it should be cash. And if you want to pay in check or through banking methods, you have to take written consent of the employee. Now, these were the reasons because the laws have not been amended from then. So now in the new Act, it says you can do check or electronic transfer as well without taking the consent from the employee. And other things remain the same with respect to the wage period and with respect to the time by which you can pay the wages. Next. Yeah, EPF. इसके बारे में किसी को क्या पता है? Anyone who can? So as I said last time, during session, EPF प्रोविडेंट फंड है जो आपका 3 चीजों में ध्यान रखता है. एक तो पीएफ पोर्शन जो आपको रिटायरमेंट पे वन टाइम मिलता है, एक पेंशन स्कीम होती है इसके अंदर ईपीएस जो रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिलती है, और एक ईडीएलआई होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस. अगर कुछ हो जाता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो उस समय में कॉम्पेंसेशन मिलता है फैमिली को. सो अब ईपीएफ को परसेंटेज की पहले बात करें तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% होता है, एम्प्लॉयर 13.61% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 3.67 आपके ईपीएफ में, 8.33 आपका ईपीएस में पेंशन में, और 0.5% डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में, और एडमिन चार्जेस सिर्फ एम्प्लॉयर से कवर किए जाते हैं. ईपीएफ को रन कर होती है 1.11%. एम्प्लॉय एक्चुअली में 12 ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो एम्प्लॉय का पूरा ईपीएफ में जाता है प्रोविडेंट फंड के लिए. क्योंकि किस पे कैलकुलेट होता है परसेंटेज? 12% और 13% ऑफ व्हाट? अगेन वेजेस. व्हाट डज वेजेस मीन हियर? योर बेसिक पे, डीए plus retention allowance. Anybody who knows what is retention allowance? Okay, so ये common practice seasonal या factories उस वहां पर seasonal employments में होती है जहां पर employees की कुछ time period पे जरूरत नहीं है, या जब organization बंद है या factory को बंद है तो उनको retain करने के लिए पे किया जाता है कि although you are not coming on work because we are not giving you work, but to retain you, we are paying this allowance to additionally. So that's retaining allowance. So now with respect to wage ceiling, जिनका basic pay plus DA plus RA 15,000 से नीचे है, उन या 15,000 है, उन पे पीएफ लगता है. उसके ऊपर के एम्प्लॉइज एक्सक्लूडेड हो, उनके ऊपर पीएफ नहीं लगता, राइट. सो जिसका 15 से नीचे है उसका 12% बेसिक पे प्लस डीए प्लस आरए का और 13.61% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा. That would be going to the PF fund, right? Now there might be certain people out of you all who must be thinking कि मेरा तो basic pay plus DA plus RA 15 से above है, but still PF component दिखता है वहाँ. That's because जब आप first time join करते हो organization, तब आपका क्या status था वो पहले check किया जाता है. Join करते समय 15 से कम थे तो PF कटना start हुआ. अब आप 15 से ऊपर भी हो जाओगे तो भी कटता रहेगा, but although maximum 15,000 की लिमिट पे ही कटे, यानी कि 15,000 का 12% would be 1,800 rupees. So 1,800 ही कटता रहेगा. आप देखोगे कि आपका बेसिक पे प्लस डीए प्लस आरए आपके केस में है नहीं, तो वो 15 से अबव है, बट स्टिल 1,200 पीएफ कट रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. That's because when you must have joined, that would have been less than 15. Supposedly, if someone joins whose basic pay plus DA is more than 50 and joins today, then legally speaking, उनको पीएफ कंट्रीब्यूशन को कोई कंपल्शन नहीं है, ना एम्प्लॉयर को ना एम्प्लॉय को. But if voluntarily that person wants to be part of the provident fund scheme, they can give a letter to the authority and get themselves included in the scheme. This was the existing law. Now what changes are coming in? Wages की definition अभी जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बताया था कि सब एक्ट में अलग है, existing laws में, नए लॉ में एक कॉमन डेफिनेशन हो जाएगी which I'll discuss once these slides are. So wage की definition I am discussing later. Wage ceiling
यहाँ इसमें ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है अभी, दैट्स अ प्रपोजल नॉट दैट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड, ये 15,000 के बजाय 25,000 कर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मतलब जिसका बेसिक पे प्लस डीए 25 के अंदर है उस पर पीएफ पीएसआईसी सॉरी पीएफ की लिमिट लगी एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो जो नया है उसके लिए तो वन टाइम चेक है, बट आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, अभी जिसका 15,000 तक का से ऊपर है बेसिक पे प्लस डीए उसका 12% यानी कि आपका पीएफ मैक्सिमम 1800 ही कटा, बट अभी जैसे ये 25,000 होगा तो आपका वो 12% भी 1800 पे कैप नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो वही है, बट ये पावर गवर्नमेंट ने भी रखी है कि 12% को शायद 10% पे ठीक कर, क्योंकि ओवरऑल में जब आपका वेज बेस बढ़ रहा है परसेंटेज भी वही रहेगा, तो टेक होम काफी सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो सकता है। तो सर्टेन कैटेगरीज में 10% और सर्टेन कैटेगरीज में 12% ऐसा दिखेगा, मतलब यूनिफॉर्म पीएफ रेट नहीं रहेगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फॉर सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स 10% and for certain 12%. अच्छा, one more thing skip to add with respect to the existing law also, that आपके EPS जो होता है पेंशन स्कीम उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1.16% कंट्रीब्यूट करती है, नाइदर द एम्प्लॉय नॉर द एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है आपके पेंशन स्कीम। सो इट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर कोई चाहता है कि मेरे को एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना है पीएफ में 12% 25% करना है, मेरे को अपना रिटायरमेंट पर्पस से बिल्ड करना है, employee can opt to do so, but employer is not bound to match that. Employer is bound to do 13.61%. If employee wants to do more than 12%, he or she can do so. Next. Okay. Benefits. So PF के benefits PF किस बेसिस पे आपको मिलता है रिटायरमेंट पे, anybody who knows on what basis you, what is the formula so to say roughly with respect to PF or ESIC or EPLI? Okay, so your PF is whatever is being deposited and EPFO उसको मैनेज करता है employees provident fund organization, and then उसमें जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको मिलता है। कमिंग टू ईपीएस पेंशन स्कीम, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप 10 साल की सर्विस में हैं तो आपका पेंशन कितना आपको मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। पेंशनेबल सैलरी क्या है कि आपकी पिछली 60 महीने जब आप ईपीएस क्लेम करना स्टार्ट करते हो वहां से पीछे की 60 महीने की एवरेज पे क्या है, उस एवरेज पे को आप पेंशनेबल सैलरी बोलेंगे। पेंशनेबल सर्विस मतलब है कि आपने कितने साल काम किया और उसको 70 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर मंथली पेंशन, बट इसमें मैक्सिमम कैपिंग लगा देंगे 7500 रुपीज, अगर इससे ज्यादा भी आ रहा होगा तो भी 7500 रुपए पर मंथ की पेंशन होगी। अगर 58 के बाद ही आप पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हो, 10 साल ऑफ सर्विस है और 58 इयर्स ऑफ एज, अगर आप उससे पहले करना चाहते हो तो 50 के बाद ही कर सकते हो, और 58 से पहले 50 के बाद भी, बट जितने पर ईयर के लिए आपका 4% से शॉर्ट होती जाएगी पेंशन। सपोज 56 इयर्स में कोई पर्सन है और वो अपना ईपीएस स्टार्ट करना चाहता है, रिटायरमेंट लेके पेंशन स्टार्ट करना चाहता है, तो उनका 4% से शॉर्ट सबको उनका मैक्सिमम 7500 आ रहा है, तो इसमें से -8% हो जाएगा, वो उनकी पेंशन भी क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ऑफर की। नाउ कमिंग टू ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.5%, जब मिसहैप हो जाता है किसी एम्प्लॉय के साथ डेथ या डिसेबिलिटी का, तो उसका कैलकुलेशन है कि जो आप लास्ट बेसिक सैलरी ड्रॉ कर रहे थे उसका 30 टाइम्स प्लस इन 3 चीजों का लोअर, पिछले 12 महीने में उस पर्सन के पीएफ अकाउंट में जो बैलेंस था उसका 50%, या शुरू से आज तक जब से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया तब से लेकर मिसहैप तक की डेट तक जो पीएफ में बैलेंस था उस पूरे बैलेंस का एवरेज का 50% या 2.5 लाख, इन तीनों में से जो लोअर होगा प्लस बेसिक सैलरी का 20 वो जोड़ के आपका कॉम्पेंसेशन निकलेगा जो फैमिली को दिया जाएगा, बट उसकी मैक्सिमम कैपिंग 7 लाख। नेक्स्ट, पीएफ से कब विड्रॉ किया जा सकता है, तो मेडिकल इमरजेंसी,
एलिजिबिलिटी कौन विड्रॉ कर सकता है, कितनी लिमिट्स हैं. So if you guys want me to cover this in detail, so I'll move forward. Should I move forward? Employee state insurance. क्या होता है ESI and how is it different from PF? Any random answer. अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ कैलकुलेट पीएफ के लिए बेसिक प्लस डीए प्लस आरए था, ईएसआईसी के लिए बेसिक पे प्लस डीए प्लस आरए प्लस ऑल अदर अलाउंसेस, सो टू से एवरीथिंग इन योर सैलरी स्लिप एक्सक्लूडिंग एनुअल बोनस, प्रोडक्शन बोनस, फ्यूल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये एक्सक्लूजन्स को छोड़ के जितना कुछ सैलरी कंपोनेंट में है वो सबको बेस मानते हुए फिर निकालेंगे ईएसआईसी के लिए एलिजिबिलिटी. 21,000 की बेस सीलिंग है. तो अभी जब मैं एग्जांपल लेके चल रहा था कि 15,000 बेसिक पे प्लस डीए, 15,000 सपोज एक पर्सन उसकी बेसिक पे 10,000 डीए 3,000 13 हो गया, कन्वेंस अलाउंस 4,000 17 हो गया, 5,000 का ऐसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, नॉट पेट्रोल और फ्यूल, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, 22 हो गया टोटल. तो अब ये ईएसआईसी के एम्बिट से बाहर है क्योंकि एक्सक्लूडिंग वाले अलाउंसेस उनके सैलरी कंपोनेंट में नहीं थे. अगर है तो आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ BigMint's केस, एज पर माय ऑब्जर्वेशन, ग्रेचुइटी, पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय, क्योंकि वो कंपोनेंट नहीं है, वो तो डिडक्शन. पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ग्रेचुइटी एंड these things are what should be excluded from your salary slip to check whether it's less than or more than 21,000, so that you can decide whether ESIC is applicable in you or not. Right? With respect to employer's contribution, it's 3.25%. You must be seeing in your salary slips. With respect to employee, it's 0.75%. In case of ESIC, voluntary contribution is not possible. And just with respect to PF, I discussed कि जिसका 15,000 से ऊपर हो गया बेसिक पे प्लस डीए, वो फिर भी पीएफ का पार्ट रहेगा, उसकी कैपिंग हो जाएगी कि 15,000 पे 12%. बट ईएसआईसी इज नॉट सच. अगर आपकी सैलरी 21 बेसिक पे कैलकुलेटेड सैलरी 21,000 से अबव है तो आप ईएसआईसी से एग्जिट हो जाते हैं और आप चाह के भी वॉलंटरीली ईएसआईसी का पार्ट नहीं कर सकते. वेज सीलिंग यहाँ पे 25,000 होने की बात चल रही है. यहाँ रेट्स क्या होंगे अभी गवर्नमेंट प्रपोजल उसका नहीं देगा. 3.25 और 0.75 को कुछ इंक्रीज करना है. And same concept, voluntary contribution will not be possible in future also, and it's calculated on the new definition of wages which I discussed. Equal Remuneration Act. सुना था इसके बारे में किसी ने कुछ पहले? लेट आया हूँ मैं तो एकदम सब गुस्सा निकाल रहा है. Yeah. So no discrimination for same work या work of similar nature. So gender-based discrimination is prohibited. This particular law talks about that. No monetary implication as such with respect to any social security schemes. Next slide, Samantha. Maternity benefit. Organizations जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उन पे लगता है एलिजिबिलिटी. Women who has worked for more than 80 days in past 12 months in the organization. जो न्यूली ज्वाइंड है दैट मींस उनके लिए ये कवरेज नहीं है. तो पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम किए उनको पेड लीव्स मिलेगी. पेड लीव्स किस रेट पे मिलेगी? जो जिस दिन से वो लीव्स चाह रही है उससे पीछे के 3 मंथ्स का जो उनका एवरेज सैलरी था उसके रेट पे उनको पर डे के बेसिस पे कैलकुलेट करके जितने दिन के लिए लीव्स पे है लीव पे उस हिसाब से मैक्सिमम लीव्स कितनी मिलती है? 26 वीक की. Maximum 8 weeks preceding the expected delivery date. Then the total is 26 weeks, but prior to delivery it's 8 weeks. And then in case of a mother of 2 or more child, already she has 2 children, and then she's going again for the maternity leave. In that case, it's maximum 12 weeks, out of which maximum 6 can be preceding the delivery date. And in case of adoption of a child, if women opts for adoption or opts for surrogacy, in both of the cases 12 weeks.
Work from home employer may consider. Then maternity crash facility is compulsory in case of organizations having more than 50 employees. And if there are women and who have children and who have all who have gone for maternity leave, then they should have a crash established in your organization, and 4 visits a day should be allowed to the crash, and 2 nursing breaks should be given to the women. And a medical bonus of 2,500 to 3,000 rupees one time if no prenatal confinement or postnatal care is given by the organization. Supposedly they cover few of your postnatal prenatal care, then this medical bonus may not be given by the organization. And the organization cannot terminate the employee during the pregnancy. Everything is same under the new law also, except for the definition of wages, which the average rate उसके हिसाब से उसमें calculate होगा. Gratuity. Gratuity क्या होता है? Anybody? आप लोग के सैलरी स्लिप में है ग्रेचुटी? क्या रेट कैसे कैलकुलेट होता है? हाँ जी, बेसिक प्लस डी का परसेंटेज होता है, राइट? 2.5, 4.8, 4.5, that might vary a little. 5 साल बाद मिलता है या 5 साल बाद एलिजिबल होता है? मिलता कब है? 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद टर्मिनेशन हो, रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, बट डिसेबलमेंट या डेथ के केस में 5 साल का क्राइटेरिया नहीं आता. ठीक है, क्या रेट पे मिलता है? 15 days of last drawn wages. What is last drawn wages? जब 5 साल पूरे हुए, सपोज एक पर्सन है 12 साल काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन में और अब रिटायर हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो जिस मंथ वो छोड़ रहे हैं उससे जस्ट प्रीसीडिंग मंथ में जो उनका लास्ट ड्रॉन वेजेस थी उस रेट पे 15 दिन की सैलरी हर एक कंप्लीटेड साल के, तो उन्होंने 12 साल कंप्लीट किए और जस्ट पिछले मंथ में जो सैलरी थी उसके रेट से 15 दिन के हिसाब से हर साल के लिए कैलकुलेट. मंथली वेजेस बेसिक प्लस डीए है, तो सपोज एक पर्सन 15,000 बेसिक प्लस डीए पे ज्वाइन किया, आप पोस्ट 12 इयर्स हिज बेसिक प्लस डीए दैट इज द वेजेस कम्स टू अराउंड सपोज 28,000. तो 28,000 into 15 by 26, not 30. 26 जो वर्किंग नंबर ऑफ डेज के बेस पे रेशियो निकल रहा है, so half a month salary into number of years which you have worked with the organization. 6 months or more will be rounded off to one completed year. Under the new law, everything is same again except the definition of wages. तो wages की definition से आपका wage बढ़ जाएगा, आपका gratuity भी बढ़ जाएगा, आपका take home कम होगा क्योंकि gratuity component ज्यादा है. अच्छा, आप लोग ये चीज पे अभी आपने कहा कि certain 4.5 or something percentage of basic and DA, you rightly pointed it out. But how do the organization know, or how do you know what would be the wages when you will leave and when you leave? क्योंकि उसमें तो फिक्स अमाउंट आ जाता है सैलरी. So that's a provisioning which the organization is doing, assuming that 1.5 अगर जिसका 5 साल पूरा नहीं हुआ है उस पर ये assumption है कि 5 साल बाद अगर आप छोड़ते हो और इसी वेज रेट पे छोड़ते हो तो मुझे इतना देना पड़ेगा. उस assumption पे प्रोविजन क्रिएट कर लिया organization that can be actually higher also than what is being shown in your salary slip, because हर महीने सपोज किसी का 400 रुपए कट रहा है, बट जब वो छोड़ने की एज पे आते हैं या रिटायर हो रहे हैं 18 इयर्स लेटर, तब तो उनका जो बेसिक पे प्लस डी होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो शायद 1000 रुपीस भी हो. So this is a kind of provisioning which is being done. This does not mean that gratuity is 2022 के लिए अगर सपोज 400 रुपए पर मंथ के सबसे 4800 पर ईयर है तो 4800 ही मिलने वाला है मुझे 2022 के लिए ग्रेचुटी. No, that's a provision which is being created tentatively because supposedly somebody leaves in 2028, तब पता नहीं उसका बेसिक पे प्लस ये क्या होगा, उसके हिसाब से वो 2022 के लिए 4800 मिलेगा उनको या 9600 फॉर एग्जांपल. तो that this is just a provision. Yes.
वेजेस का डेफिनेशन, तो वेजेस का डेफिनेशन नए एक्ट में, नए लेबर लॉ कोड्स में पहले मैंने जैसे हर एक्ट के लिए बताया कि इस एक्ट के लिए ये वेजेस का डेफिनेशन, नए में इट सेज वेजेस मींस ऑल रेम्यूनरेशन, everything, whether by way of salary, allowance, otherwise, which is expressed in money or capable of being expressed in money, and which is payable to a person in respect of his employment. Employment के बदले में जो भी उनको पेमेंट दी जा रही है, उसका नाम जो भी वो पैसे के रूप में दी जा रही है या जो चीज दी जा रही है उसको पैसे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एवरीथिंग इज वेजेस. And includes तीन एग्जांपल देखते हैं बेसिकली. दिस इज नॉट द ओनली थिंग, दिस इज द मेजर. सो बेसिकली ये आ रहा है, ये पहले भी था कवर. सो नाउ जनरल रूल कि सब कुछ वेजेस है, फिर कुछ एक्सक्लूजन्स कि ये चीजें वेजेस नहीं. बोनस, हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू और सर्टेन अदर हाउस यूटिलिटीज जो अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही डायरेक्टली, नॉट एचआरए. हियर इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एचआरए, इट इज टॉकिंग अबाउट हाउस एज अ परक्विजिट. इफ सपोजिटली किसी को रहने के लिए दिया जाता है कोई फैसिलिटी का पेमेंट डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट अलाउंसेस. देन एम्प्लॉयर जो पीएफ पे कंट्रीब्यूट करता है वो कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल एक्सपेंसेस को डिफरे करने के लिए ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क. एनीबॉडी कैन गिव एन एग्जांपल, सम पेड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क. यूनिफॉर्म अलाउंस टू फैक्ट्री वर्कर्स because their nature of work is such कि उनको ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए ठीक है. हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एनी कमीशन पेबल, ग्रेचुइटी, ये सब चीजें काउंट नहीं होंगी वेजेस की डेफिनेशन. तो अब यहाँ तो लग रहा होगा प्लानिंग का बहुत बढ़िया स्कोप है कि टेक होम बढ़ाना है तो ये कंपोनेंट ज्यादा रख लेते हैं, राइट. और टेक होम बढ़ जाएगा फिर बेसिक, क्योंकि वेजेस में काउंट नहीं होंगे तो वेजेस का चाहे 12% पीएफ निकालना हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे ग्रेचुइटी हो, कोई वो सब भी कम आएगा. नेचुरली टेक होम भी नॉट बी इंपैक्टेड. बट देयर इज अ कैवेट व्हिच द गवर्नमेंट हैज पुट कि जो ये एक्सक्लूजन्स है ये 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन से ज्यादा नहीं हो सकते. अगर ज्यादा है तो जितने से ज्यादा है वो वेजेस में ऐड बैक कर दिया जाए. ठीक है. नेक्स्ट, तो दिस इज एन एग्जांपल. योर बेसिक पे 8000 एचआरए. अब यहां पर एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से देखूं तो क्या पीएफ किस पे कटेगा? इस 8000 प्लस 1000 9000. ठीक है. अब नए डेफिनेशन में क्या होगा, ये पहले पूरा टोटल करेंगे आप 25. ये तीन एक्सक्लूडेड की लिस्ट में थे, कन्वेंस, कमीशन इन एचआरए. तो एक्सक्लूजन हो गया 13, which is more than the total, more than 50% of the total. तो 500 से एक्स्ट्रा था तो 500 ऐड बैक हो जाएगा. तो आपका अभी क्या होता है 25 माइनस 13 12 दिख रहा है कि वेजेस है, 500 ऐड बैक होगा बिकॉज 50% से ज्यादा का एक्सक्लूजन हो जा रहे हैं. तो 12500 पे आपका पीएफ कटेगा, ईएसआईसी भी 12500 पे कटेगा, ग्रेचुइटी भी 12500 ना कि 1200. इस एग्जांपल में 500 रुपए का फर्क होता है. बट आई हैव अनदर एग्जांपल. शीट पे क्लिक करो, एस्केप फोल्डर में है इसको. ये स्टीलमेंट के किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप है जो मैंने कहा था एक मुझे डबल क्रिएट करके दीजिए. वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस आल्सो. यहाँ देखेंगे ग्रॉस सैलरी 35000 है, ईयरली सैलरी 4.2 लाख है. वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये मार्केटिंग टीम एज एन टोल्ड देयर इज अ स्पेसिफिक टीम, सिर्फ उनको वेरिएबल कंपोनेंट है, बाकी सबको फिक्स्ड कंपोनेंट्स है. तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए टोटल से नेट टेक होम में चेंज होगा. तो अभी के लॉ में हम डिस्कस करते हैं
बेसिक सैलरी 14,000 की, ग्रॉस सैलरी का 40%, 5% of the gross salary is DA, and HRA is 40% of basic and DA. LTA is 10% of basic and DA. तो ये सारे फिगर्स आपके सामने आ गए। 1250 मेडिकल अलाउंस फिक्स है, 1600 कन्वेंस अलाउंस फिक्स है, अदर अलाउंसेस जो बैलेंस है। तो अभी इसमें पीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है अंडर एग्जिस्टिंग ईयर? करेक्ट, 14 ये 15,750। 15 this 15,750 is more than 15,000. Presuming this employee joined when his basic plus DA was less than 15, तो उसमें 15 में तो कटेगा ही, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ 1800, ना कि 15,750 का 12%, which that is slightly more than 1,800, but this is 1,800, that is 12% of 15,000. So ये employer का contribution है। Then gratuity 4.81% पे again calculated on this. These are fixed bonuses. With respect to employee, again same. So assuming that employee has not voluntarily opted for incremental contributions, ESIC नहीं आ रहा है, क्यों? Total is greater than 21. Anything which will be excluded while counting the 21? हमने डिस्कस किया था सब कुछ काउंट करना है ESIC के लिए, बट क्या क्या नहीं गिनना है, फिर मैंने कुछ एक्सक्लूजन्स वो है ग्रेचुइटी, पीएफ का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन नहीं है जो आप हमारे उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको डिडक्शन, तो ये डिडक्शंस, ये कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुइटी ये काउंट नहीं है। सो टू से ये सारे काउंट हो रहे हैं जो अंडरलाइन, ये सारे अगर 21 से ऊपर है तो ESIC कवर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ESIC नहीं है। तो आप देखेंगे टोटल रिडक्शंस 3,308 रुपीज है, तो नेट टेक होम समझ लीजिए, नेट टेक होम इस केस में 29,892 रुपीज है ऑन ग्रॉस सैलरी ऑफ 35,000। नाउ लेट्स डिस्कस, अगर स्ट्रक्चर सपोजेडली नया लेबर लॉ के हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं करती, सैलरी स्लिप को ऑल्टर नहीं करती, तो आपका टेक होम कितने से गिरेगा? सोशल सिक्योरिटी कोड के हिसाब से जो वेजेस की डेफिनेशन है उसमें बेसिक पे आता है, यस, उस पर डीए आता है, यस, एचआरए नहीं था, स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स में था, देन एलटीए आता है क्योंकि वो स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स में नहीं, मेडिकल अलाउंस आता है क्योंकि वो स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स में नहीं, कन्वेंस अलाउंस नहीं आता क्योंकि वो स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स में था, अदर अलाउंस आता है क्योंकि स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स में नहीं था, अब पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं आता क्योंकि एक्सक्लूजन्स में लिखा था, सेम विद ईएसआईसी, सेम विद ग्रेचुइटी, क्योंकि वहां लिखा है कि एक्सक्लूडेड, हम ऊपर नो यहां पर दिवाली गिफ्ट और मेडिक्लेम प्रीमियम इसको एक्सक्लूजन में नहीं दिया है, तो ये यस, इसके हिसाब से ये यस नो के हिसाब से मैंने जो जो आता है वेजेस में उनके करस्पॉन्डिंग फिगर्स से पर रिप्रोड्यूस कर। अब अगर आप इसका टोटल देखोगे तो 24,542, दैट मींस अब आपके वेजेस 15,750 नहीं है फॉर द लॉ, 24,542, तो 24,542 है वेजेस, तो नेचुरली पीएफ पीएसआई स्लिप चेंज होने वाला है, राइट? तो जूम आउट करिए, वेदर एक्सक्लूजन का वो चीज ये भी चेक करनी है, अभी 24,542 फाइनल नहीं, ये चीज चेक करनी है कि एक्सक्लूजन 50% से ज्यादा तो नहीं, अगर ज्यादा है तो उतना हिस्सा अभी और ऐड बैक करना है ये चीज। तो आपका एक्सक्लूजन जहां वो लिखा था वो थे, एक तो आपका दिस वाज एचआरए, देन यू हैड वन कन्वेंस, बैलेंस अलाउंस, देन यू हैव दिस पीएफ पीएसआईसी ग्रेचुइटी, ये एक्सक्लूजन्स में यहां नहीं काउंट होंगे क्योंकि एक्सक्लूजन्स में एक कैविएट ये लगाया है, पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेचुइटी वाले एक्सक्लूजन को 50% का कैलकुलेशन के समय पे ध्यान नहीं रखता, इसलिए मैंने उनको यहाँ फिगर रिप्रोड्यूस नहीं किया।
तो आपकी एक्सक्लूजन्स 10,845 रुपये इस पर्टिकुलर सैलरी स्लिप में, which is not more than 50% of 24,000. इसलिए मैं बेसिक वेजेस में कुछ भी ऐड बैक नहीं कर रहा और बेसिक वेजेस 24,542 में, ठीक है। नाउ कमिंग टू पीएफ ईएसआईसी, अब आपका ये 1,800 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं ये अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 15,000 की सीलिंग को 25,000 पर, तो वो 25 होगी, तो आपका 25,000 का 12% कटेगा, तो वो मैंने यहाँ पर 25,000 का 12% लिखा है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी, और आपका ग्रेचुइटी 4.81% ऑन 25, ठीक है। सॉरी, इस पे तो कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें एक्चुअल कमिंग डाउन, तो आपका टोटल पीएफ प्लस एम्प्लॉयर पीएफ प्लस ग्रेचुइटी 7,070 रुपए। अब अगर मैं बात करूं इन तीनों के टोटल की, तो यहाँ 24,542, यहाँ पर पीएफ portions plus gratuity portion 7,070, and then the exclusions are 10,840. So if I total all these, then the gross salary is 42,450. If we go by this method, that means there is an increase by 7,458 rupees. But now, practically speaking, organizations, they value as per what metrics they have decided that this particular person, is of this value to the organization. Because of change in the law, there will not be increase in your salaries. यहाँ ऐसा दिख रहा है salary increase होगी, but what every organization is planning is that since ये 7,458 रुपए का increase हुआ है, because ये बढ़ गया, उसके वजह से ये बढ़ा, तो हम इसको कम करने के लिए इससे कम कर, मतलब कि आपके other allowances, आपके जो allowances बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं माने जा रहे थे, उसको कम करके इतने पोर्शन से जितने से इंक्रीज है 3,386 कर देंगे 10,845 पे बन रहा है। तो क्या होगा कि आपका इन हैंड, ये तो आपका डिडक्ट होगा, इन हैंड आपका हो जाएगा दिस 24,542 प्लस दिस, तो आपका इन हैंड हो जाएगा 27,929, earlier it was 29,892. So just by this law coming into effect, 2,000 रुपए का पर मंथ का टेक होम कम हो जाए। तो अगर 12, assuming two things, if 12% is the rate specified for deduct PF, and if 25,000 is the base fee, which the government is proposing that these two things they are going to stick to, because they are of the opinion that for social security of employees, these things should be there. Otherwise, what employees also used to do, that for increasing their take home, they used to get their salary structure as such, and employers also, so that at times in certain cases employers also, that they have to contribute less on the PF part or on the gratuity part. So they used to keep the basic plus DA to the minimum level, because कोई ऐसा minimum percentage prescribed नहीं थी. Now this 50% coming into effect is a barrier to that planning. Therefore, I said in the very first slide of mine that I'll explain how your take home is going to get. So everybody can work out this with respect to how first you are calculating कि उनका wages का, उनकी नई definition में wages की value क्या हो, by seeing share that one slide इसमें लिखा है कि क्या क्या exclusions है. Rest, obviously this entire thing need not be memorized by you, because only that slide if you have with you, you can see your salary slip and check कि क्या क्या चीजें आपकी wages में count होगी next year से, तो वो wages में count होगी, उस हिसाब से आपका कितना reduction हो जाएगा. So any questions? I am done with my session. So statutory components, इसके अलावा किसी को भी कोई और statutory component पता है? PF हो गया, ESIC हो गया, gratuity हो गया, और कोई statutory component anybody knows? There was some professional tax or something. Correct. So is it a component of your salary? Is it a component, or is it a payment which you ought to make if you are earning? So I remember it was a payment that we have Right. to make as well. Right, because you do not get any benefit out of it. That's not for that. That's a tax which is being. And is it there in Chhattisgarh? Where you used to work? Chennai, Tamil Nadu. Yeah, there, and then this Maharashtra, and there are few states where professional tax system there.
So I'll leave you guys for questions. बिजनेस एक ओवर के केस में ये क्रेडिट कैसी है? आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लीजिए कि एक तो टी है, दूसरे जो भी बाय करके, हाँ जी, और यहाँ पे टाइम स्लाइड होना चाहिए, हाँ जी, तो क्रेडिट का कैसे 5 साल ऑफ कंप्लीटेड सर्विस वाला कंडीशन, इतने साल काम किए हो वाली कंडीशन, राइट? क्वेश्चन सो विद रिस्पेक्ट टू टेक ओवर, पहले तो ये डिस्कस करना जरूरी है कि टेक ओवर कैसे हो रहा है। हम जनरल भाषा में सब चीजों को टेक ओवर बोल देते हैं कि इस कंपनी ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया, ठीक है? वो दो तरीके से हो सकता है प्राइमरीली, मैं बोलूंगा। एक हो गया मर्जर या अमेलगमेशन, कि कंपनी ए कंपनी बी में मर्ज हो गई, कंपनी ए खत्म हो गई और कंपनी बी ही अब बची है, सारा उसका बिजनेस इसमें आ गया, उसके एम्प्लॉइज भी आ गए। तो मर्जर के केस में जो अथॉरिटी है जो मर्जर अप्रूव करती है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो ये चीज का ध्यान रखती है कि जो स्कीम ऑफ मर्जर है या स्कीम ऑफ अमेलगमेशन है, उसमें ये क्लॉज जरूर हो कि ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं उस कंपनी को जो खत्म हो जाएगी, और ट्रांसफरी कंपनी जो कंपनी रहेगी। तो ट्रांसफरर कंपनी के एम्प्लॉइज के राइट्स जैसे ट्रांसफरर कंपनी में थे वैसे ही ट्रांसफरी कंपनी में रहे। तो ये तो हुआ उस सिनेरियो में जहां मर्जर या अमेलगमेशन के थ्रू हो रहा है। अब टेक ओवर का एक मीनिंग होता है, सपोज देयर इज अ कंपनी, उसके प्रमोटर्स चेंज हुए, राइट? अभी ट्विटर का एग्जांपल हम सब सुन रहे होंगे कि ट्विटर, इलॉन मस्क जी, ऑल्दो कल आया है कि शायद द डील इज ऑन होल्ड, बट he intends to have Twitter. So it's a takeover. Earlier there were other promoters and the public who own, but now Mr. Musk will be the promoter. So this is takeover in legal sense. अब यहाँ पर takeover के सेंस में ऑर्गेनाइजेशन चेंज ही नहीं हुई। ट्विटर इंक है, उसके ओनर चेंज हो गए, उसके एम्प्लॉइज का स्टेटस का कुछ चेंज होने की क्वेश्चन की बात ही नहीं। So in any of either in takeover scenarios or in amalgamation merger scenarios, employees' rights are secure. Certain times, adding to this, at times, in certain organizations क्या होता है कि 3-4 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके 5 साल पूरे होने वाले, switch this employee to come from company A to company B, तो वो ग्रेचुइटी एंटाइटलमेंट कह लो, तो उस चीज पे इफेक्ट के लिए तो there are few things which the employers in certain organizations are tweaking the provisions for the benefits, and here that's why these things are something which you guys should be aware of the basic points. So wherever you are aware with these points, and then you can exercise your rights. So one more question. Suppose company created in 2010, and after 5 years they bring the concept of credit, and now 10 years. Immediate होगा वो credit कैसे get 5 साल के बाद वो ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया कंपनी वाले। ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट कंपनी नहीं लाएगी, ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट कानून में, तो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले नहीं था क्योंकि आपको कंपनी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हो कंपनी 5 साल बाद ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट लाई, आप ये बोल रहे हो, और उसके बाद फिर 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, और तो 10 हो गए, ये आप कह रहे हो ना। मेरा ये कहना है कि कंपनी नहीं लाती ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट, वो तो लगता ही है क्योंकि कानून बोलता है। कंपनी, कौन सी कंपनी लाना चाहिए ऐसा कॉन्सेप्ट की वो, क्योंकि दोनों के लिए एम्प्लॉय देखता है कि मेरा टेक होम कम हो रहा है इसके वजह से, और एम्प्लॉयर है कि मेरे को अभी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट, उसका प्रोविजन क्रिएट करना रिटायरमेंट पे एक साथ देने पर्पस, राइट? तो दोनों ही, अगर मैं वैसे बोलूं तो आज के सिनेरियो में सिंस वी आर आल्सो इंडियन माइंडसेट इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स यूएस स्पेंडिंग स्टाइल एंड स्पेंडिंग सेविंग्स का वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता जा रहा है। तो जैसा पहले था वैसा नहीं है, इसीलिए सब टेक होम के प्रति इंसिस्ट करते हैं, बट वो लॉ में लिखा है तो ग्रेचुइटी देगा ही ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो एस्केप टू दैट। Now with respect to this, there is no regulation in the law for this. एम्प्लॉय की जो कॉम्पेंसेशन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की है, उसमें होता है कि लोन एम्प्लॉय ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, स्टैंडर्ड होता है 3 मंथ्स का लोन, 3 मंथ्स की सैलरी का लोन। अब वहां पर उन्होंने सैलरी को क्या डिफाइन किया, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेरोगेटिव, यानी कि वो उनके ऊपर, उनके पास अधिकार है कि वो क्या सैलरी को क्या डिफाइन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि कितना मैक्सिमम आप लोन लेना चाहो। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बेसिक प्लस डीए को ही डिफाइन करे,
इसका 3 months का आप ले सकते हो लोन। तो कोई हो सकता है कि एंटायर योर CTC, मतलब आपका ग्रॉस सैलरी है उसको, जनरली ग्रॉस सैलरी होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सैलरी स्लिप आना चाहिए कि नहीं? आपके सी अब गुड क्वेश्चन, सैलरी स्लिप में हम ये बोलेंगे कि 12% जो पीएफ है वो तो मेरे सैलरी में से कट रहा है, और आपने ये सुना होगा एम्प्लॉयर जो 12% कंट्रीब्यूट करता है वो आपकी सैलरी पे एडिशनल कंट्रीब्यूट करता है। वो लॉ ये बोलता है वो सैलरी का पार्ट नहीं है, एम्प्लॉयर 12% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो सैलरी स्लिप जो है ना वो सिर्फ सैलरी नहीं बता रही, वो ये बता रही है साथ में एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, इसीलिए उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हेड में दिखाते हैं। और आपकी सैलरी से डिडक्ट क्या होगा, तो सब कुछ दिखाना सही है ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन समझ आए, इसीलिए सब कुछ होना बिल्कुल सही है। देयर इज नथिंग कि अगर वो स्लिप में नहीं भी होता तो भी उतना ही कटता और आपका नेट सीट आपका टेक होम उतना ही रहता। So it's just more explanatory for you to understand every component of it. There's no. I think some of. सर अभी जैसे पीएफ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है वो 8.2% है, और जैसे 20-25 साल के बाद देखा जाए तो एक एसआईपी का कंट्रीब्यूशन आता है कि 10 से 12% का आता है। तो बेटर ये होगा या बेटर ये? बेटर एसआईपी है, बट ये क्या वो से मतलब नहीं है क्योंकि दिस इज कंपलसरी, दिस कुछ मैं ये नहीं था कि जैसे अगर मैं 5 साल से क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, उनमें से नहीं कर जाए, यही पॉसिबल नहीं, ये कंपलसरी है पीएफ। अगर आप एक बार पीएफ के नेट में आ चुके हैं, मतलब जब आपने ज्वाइन किया तब आपका बेसिक पे प्लस डीए 15 से नीचे था, एग्जिस्टिंग लॉ में या प्रपोज्ड लॉ में 25 से नीचे रहेगा, तो आप एक बार आ गए तो लाइफ टाइम पीएफ का पार्ट। जिसने ज्वाइन किया और तभी उसकी बेसिक पे प्लस डीए 15 से ऊपर थी, तो वो पार्ट ही नहीं बना पीएफ का और फिर आगे भी नहीं उस पर लगेगा, वॉलंटरली को बनना चाहते हैं तो ठीक है। तब intent behind this legislation is the social security to persons who earn comparatively on a margins where it might be difficult for them to plan their retirement if they do not save. Therefore, this is a compulsory enforced social scheme. कि कल को ऐसा ना हो कि सोसाइटी एट लार्ज में लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन स्विच होता है वर्किंग पॉपुलेशन, तब ऐसा ना हो कि रिटायर्ड लोग ज्यादा ऐसे हो जिन्होंने सेविंग्स ही नहीं की हैं और उसका अल्टीमेटली फिर बर्डन गवर्नमेंट का पूरी इकोनॉमी पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर उनके पास नहीं तो गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग सर्टेन वेलफेयर स्कीम्स। So that's why they want to ensure that this much statutory is deducted from the salary and it is kept safe aside, although with lesser returns compared to risky options. And also you should be comparing this with a fixed instrument like an FD. So this is very secure. Whatever happens, government will be giving you that. So because it carries that nature, इसलिए उसका return इतना ज़्यादा नहीं। एनपीएस बेटर हो सकता है या पीपीएफ? NPS या PPF. So both products are different. So PPF has a lock-in of 15 years, and NPS has, you get NPS when you reach an age of 60 years. So it all depends on how much time you want to give to that product. And adding to that, again, PF is a compulsory part, so they should not give PPF research. So and also PPF, again you get a fixed interest every year. You will be able to redeem that after 15 years. NPS you can systematically create how much you want to invest in equity, how much you want to invest in government securities and bonds. So that depends on your risk profile. Also PPF is an EEE product. So when you invest in a PPF, you get ATC deduction. When you earn interest, that is also not taxable. On maturity also, whatever money you get, it's not taxable. So that's an EEE product. NPS on the other hand, when you redeem NPS, there is some tax that you have to pay, but it has a big lock-in. So I would not suggest you to go for PPF. There are other products for retirement, since
NPS gives them additional tax cut. That is why I prefer to guide somebody to invest in NPS. We will also see some tax computations. So I'm going to discuss about 3 income levels that somebody earns, like around 6 to 7 lakh, and then 10, 11 lakh, and 13 lakh, and how you can plan in such a way that you pay zero tax. So first I want to start with 13 lakh. So anybody who has a permanent house outside Raipur? Everybody is from Raipur? Outside Raipur. Okay. So basically, even individuals who are earning around 13.5 lakh rupees, they can pay zero tax by planning. So how many of you remember what all exemptions we can avail, sir? If you can name out 1 or 2 exemptions that we discussed last week. That was the standard operation. Then tuition fees for the school. Okay. Apart from that, there is the medical election for medical. Okay, health insurance. Okay, so good that you remember some. So exemptions, if I have to chalk out, HRA is one exemption that gives you a very big tax cut. Then you have LTA, that's leave travel concession. जो 4 साल में 2 बार आप ले सकते हो. Then if you have children allowance for education and for hostel. Then if you get a bonus up to 5,000 rupees as a gift, that is also not taxable. Then if you also get food coupons, so for every day that you come to office, 50 rupees per meal food coupon that employer gives you is not added to your taxable income. So I've just prepared a computation. If you see, so this person is earning 13,43,600 rupees, okay? So he has a basic pay which is 6 lakh rupees, so around 40-45%, and then he is getting transport allowance, entertainment allowance. These allowances are fully taxable. So our entertainment allowances, one gets a tax cut only if he is a government employee. तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई टैक्स कट नहीं है, उसके लिए पूरा आपकी इनकम में ऐड होता है. So there is a slab, but that's only applicable for the government employees. So transport allowance पूरा आपके इनकम में ऐड होगा. Entertainment, other allowances मैंने 55,000 के डाले हैं, so that can be in a different name from company to company. HRA, again now HRA has kept around 40% of your salary. So if you are living with your parents and if you pay them some rent and your HRA component is also around 40% of your total salary, then if you see here, you're almost getting an exemption of 3 lakh rupees. So out of 13 lakh that you earn, 3 lakh is being deducted due to HRA. So that's a big takeaway for somebody falling in 30% tax slab. You save 90,000 rupees as tax here. Then you have a children education allowance and hostel allowance. So for that we discussed 100 rupees per month and 300 rupees per month per child for 2 children. So 9,600 you get a tax cut here. LTA का यहाँ component मैंने 40,000 रुपए रखा है. LTA का benefit आपको 4 साल में 2 बार मिलेगा for you along with your family and 2 kids. तो 40,000 मैंने इस तरीके से रखा है. Supposedly अगर 4 लोग फ्लाइट से कहीं ट्रैवल करते हैं, 5,000 रुपए भी टिकट का कॉस्ट है, तो 20,000 जाना और 20,000 आना. So 40,000 कंपनी ने आपको सैलरी स्ट्रक्चर में दिया है. अगर यहाँ आप 1 लाख रुपए भी खर्चा करते हो तो आपको 40,000 की एग्जेम्पशन मिलती है. आप अगर 30,000 रुपए खर्चा करते हो तो आपको 30,000 की ही एग्जेम्पशन मिलेगी.
तो आई हैव टेकन कि 40,000 एंड दिस इज ओनली फॉर द एयर फेयर, या ट्रेन से जाते हो तो एसी फर्स्ट क्लास की जो टिकट है उसका कॉस्ट इंक्लूडेड है। बाकी चीजें ट्रैवल में घूमना खाना पीना दैट इज नॉट इंक्लूडेड, सो दैट इज ओनली फॉर योर ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन कमिंग बैक। फूड कूपन्स एज आई डिस्कस्ड 50 रुपए पर मील टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो अगर दिन का 100 रुपए भी अगर हम लें और 20 वर्किंग डेज, तो अगर दिवाली की 5 दिन की छुट्टी है तो उस दिन 100 रुपए पर डे कवर नहीं होगा, तो अगर एवरेज में 20 वर्किंग डेज भी हम लें तो 24,000 होगा साल भर का। हर महीने 2,000 रुपए का फूड कूपन आपको मिल सकता है और 12 महीने के लिए 24,000 तक का आपको टैक्स एग्जेम्पशन जो आपको आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी देयर इज वन हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें आप लॉस क्लेम कर सकते हैं, दैट कैन बी सेट ऑफ विद योर सैलरी। फिर any salaried employee must also be earning some interest, savings bank में जो इंटरेस्ट है, तो 10,000 रुपए तक का सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट मैंने लिया है, that will be added in your income। ये 10,000 क्योंकि हम देखेंगे नीचे हमको डिडक्शन मिल जाएगी, तो सेविंग्स इंटरेस्ट अगर 10,000 रुपए तक का है तो दैट इज टैक्स फ्री। आप कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड यहाँ पैसे लगा रहे होंगे, तो मैंने अज्यूम किया है कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए तक का आपको डिविडेंड या वो सारा इंटरेस्ट मिलेगा। दिस ऑल ऑफ इट क्रिएट्स योर ग्रॉस टोटल इनकम। 9,15,000 अपनी सैलरी थी, उसमें से 2 लाख माइनस किए 7,15,000। 7,15,000 के बाद हमने 15,000 और ऐड किया अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो दैट मीन्स 7,30,000। 7,30,000 के बाद आप एटीसी के सर आप 3 कंपोनेंट्स बताएंगे जो अपन डिस्कस किए। ओके, तो होम लोन का प्रिंसिपल पोर्शन, लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ जो आपका एम्प्लॉयर कटता है दैट इज आल्सो टैक्स, गेट्स अ टैक्स कट अंडर एटीसी। जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, अगर इफ यू आर डूइंग अ 5,000 रुपीस एसआईपी, सो वो भी 60,000 ऐड अप हो जाएगा। तो मैंने अज्यूम किया है कि अगर कोई इतने पैसे कमा रहा है 13-14 लाख रुपए, तो ही इज एबल टू अवेल ऑल ऑफ एटीसी। और अगर आप देखेंगे हाउसिंग लोन में भी प्रिंसिपल पोर्शन आएगा, तो वो भी आपको एटीसी का कट देगा। तो यहाँ पे 1.5 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे सर ने पूछा कि पीपीएफ में करें या एनपीएस में, तो इफ यू कंट्रीब्यूट इन एनपीएस यू गेट एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। तो 1.5 लाख के बाद 50,000 आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी यहाँ पे। फिर सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट जो 10,000 का था वो भी आपको डिडक्शन मिलेगा क्योंकि उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगता। एडिशनली आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो प्रिवेंटिव, अगर हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप भी कराते हो, दैट्स अ प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप। 5,000 तक का आप एटीडी में डिडक्शन ले सकते हो। दिस इज विदाउट बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप 5,000 का ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। आई हैव अज्यूम्ड कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर खरीदेंगे तो 15,000 तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो दिस ये 15,000 और 5,000 दैट मेक्स इट 20,000। इफ यू सी योर नेट टोटल इनकम कम्स टू 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस पे 2.5 लाख रुपए तक का स्लैब है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% टैक्स लगता है, तो दैट कम्स टू 12,500। 5 लाख तक का अगर टोटल इनकम रहता है यू गेट अ रिबेट इक्वल टू 12,500। तो 12,500 में से 12,500 माइनस हो गया, तो आइडियली यू आर पेइंग नो टैक्स इन दिस सिचुएशन। बट ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? सो इफ यू सी दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। 13 लाख, 10 लाख के ऊपर आपको 30% लगेगा, 5 के ऊपर आपको 20% टैक्स लगेगा। बट इफ यू प्लान इट इन द राइट वे यू कैन pay zero tax like this, but this is possible। अगर आप हाउसिंग, अगर आपका यहाँ पे घर है तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैं रेंट पे भी रहता हूँ और मेरा एक घर भी है, सो यू कैन नॉट डू दैट इन द सेम सिटी। बट अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भिलाई से भी है, अगर उसका घर भिलाई में है तो वो रायपुर में रेंट पे लेके, और अगर उसका परमानेंट हाउसिंग लोन भिलाई के घर में,
तो वो वहां से हाउसिंग लोन बेनिफिट ले सकता है और रायपुर में रेंट देके एचआरए का बेनिफिट ले सकता है। सो दिस by this way you can plan for 13.58 lakh rupees. इस कंपोनेंट पे आपको 13.58 पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा as I discussed. Now coming to an individual who is earning around 5 to 6 lakh 7 lakh salary. Okay, so these numbers are tentative, like 25-50,000 ऊपर नीचे, बेसिकली नीचे 6 लाख हो 5.5 लाख हो, तो वो इसको प्लान कर सकते हैं। तो 6.75 लाख में अगर आप देखोगे तो अगेन वी आर अवेलिंग दीज बेनिफिट्स कि हम एलटीए का बेनिफिट ले रहे हैं, फूड कूपन का ले रहे हैं और बोनस का ले रहे हैं। अगर हम एचआरए नहीं पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका खुद का घर है, तो आप अब एचआरए का कंपोनेंट मतलब रेंट तो किसी को पे नहीं करोगे, तो दिस इज फॉर समबडी हु हैज हिज ओन हाउस। गोइंग फॉरवर्ड इस कंप्यूटेशन में भी मैंने अज्यूम किया है कि आपका 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है, 5-6 हजार रुपए आपको अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिविडेंड मिल रहा है अगर आपको कंपनी से, तो 5,000 उसका मैंने कंपोनेंट लिया है यहाँ पे। इफ यू सी, इससे हमारा टोटल इनकम 5,82,000 आ रहा है। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम 80C में भी 1.5 लाख तक नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आपका पीएफ कट रहा है अप्रोक्स 1,800 2,000 का, तो 24,000 आपको 80C में वैसे मिल गया। यू डोंट हैव अ हाउसिंग लोन, तो आपको हाउसिंग लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। खुद के घर में आप रह रहे हो तो एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर 24,000 के बाद क्या आप 36,000 रुपए टैक्स सेवर फंड में आप डाल सकते हो। एनीबडी जो 5-6 लाख रुपए कमा रहा है वो 3,000 का तो म्यूचुअल फंड में, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर वो 3,000 रुपए भी इन्वेस्ट करता है तो 60,000 आपको 80C में बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी आप, यू डोंट हैव अ बिग फैमिली और टेकिंग ओनली इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ, तो आपका इंश्योरेंस भी 25,000 की लिमिट है, बट 25,000 आइडियली आपका प्रीमियम आएगा नहीं, आपका प्रीमियम 6-7 हजार आएगा। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। देन यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो आप ले सकते हो 5,000 का। that's on an year basis, तो ये भी आपको 12,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल अगर मैं बोलूं तो ग्रॉस टोटल इनकम 582 है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उसको 5 लाख रुपए तक लाना, क्योंकि 5 लाख 1 रुपए भी अगर रहेगा तो आपको 12,500 रुपए का टैक्स लगेगा। 12,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस, दैट मेक्स इट अराउंड 13,000। तो अगर 5 लाख 5,000 रुपए भी आ रहा है तो आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। 5 लाख 10,000 रुपए भी आ रहा है तो 10,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एक आफ्टर एवरी सिंगल रुपी आफ्टर 5 लाख यू हैव टू पे टैक्स। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से किया गया है कि आपका जो नेट टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक है। तो 13 लाख का भी मैंने एक एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल और है 11 लाख का, दैट इज अ सिचुएशन, इसमें आपका हाउसिंग लोन नहीं है, आप रेंट दे रहे हो, तो आप एचआरए क्लेम कर रहे हो पर हाउसिंग लोन नहीं है। इन दैट सिनेरियो आल्सो यू कैन अर्न 11 लाख रुपीस एंड पे नो टैक्स। तो जो 13 लाख वाला मेरा कंप्यूटेशन था, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, बट उसमें हाउसिंग लोन नहीं है, तो वो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। But if you have this much of income, you can still contribute and cover your 80C of 1.5 lakh. So जितने सैलरी में जितने टैक्स कट्स हमारे हो सकते हैं by exemptions और by deductions, I have tried कि मैं वो सारी चीजों को कवर करूं। तो इतनी अगर आपकी इतनी ही सैलरी है तो you can go home with paying no income tax. You just need to plan well and plan in advance. Plan इस साल के लिए अभी से प्लान कीजिए कि आपका जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, what should be your SIP, how you are going to plan your insurance and everything, ताकि
आप मिनिमाइज कर पाओ टैक्स इंसिडेंस अभी से। ऑल्सो जैसे क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि फरवरी मार्च में आप देख रहे हो, आप 10 महीने 11 महीने नहीं देखे कि मेरे को टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या चीजें करनी है, और कंपनी आपका टीडीएस काटती जा रही है। कंपनी एक पोर्शन है जो टीडीएस के फॉर्म में काट रही है। इफ यू प्लान एंड इफ यू try and make your net total income up to 5 lakh rupees, तो जितना आपका TDS कटा है, when you file your income tax return, everything will be refunded to you. तो अगर आपका 30,000 40,000 का भी TDS कटा है जो कंपनी ने काटा है, but your net total income comes up to 5 lakh rupees, आप फाइल कीजिए और आपको गवर्नमेंट पूरा रिफंड देगी, TDS का पूरा रिफंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि TDS कट गया तो अब हमने प्लानिंग भी कर ली और टीडीएस कट गया तो वो हमको वापस नहीं मिल सकता। Hello, sir, can I ask a question? Yeah, please. Yeah, so my question is like how correct variable being a part of CTC, because variable is something which you can't determine like what amount wise you will get at the end of the year, but considering it a part of CTC, which means like company is showing its expense, but actually we are also not sure, and even tax planning becomes quite difficult in such cases. So what should it actually be a part of CTC or not, and if yes, why? If no, why? And how we can do tax planning in proper way in this case? I think you are asking कि वेरिएबल पोर्शन जो है वो हमको शुरू से पता नहीं रहता और वो अचानक से अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस सिचुएशन में कैसे टैक्स प्लानिंग करें, राइट? हाँ, एक वो, और दूसरा whether it should be a part of CTC, because मतलब you are showing that amount but you are not sure whether that would be actually credited or not. That is subjective, correct? Okay, so I would say कि आपके सैलरी स्लिप में या सैलरी स्ट्रक्चर में एटलीस्ट दीज थिंग्स शुड बी देयर फॉर श्योर, क्योंकि ये आपको ये जो यहाँ पे एग्जेम्पशन का कॉलम है, ये जो 5 एग्जेम्पशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो एटलीस्ट ये वाले कंपोनेंट्स तो आपके सैलरी स्ट्रक्चर में होने ही चाहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिले। Thing is forms part of your remuneration as per the labor laws. Although whether it is categorized as wages or not is a separate matter, but it is part of your remuneration. And if I talk about CTC is even wider than remuneration, because CTC also encompasses the gratuity, which suppose it is not part of your remuneration, but is the provision which is being made, which you will get once you leave the organization. So if I talk from that perspective, then if gratuity is being made part of your CTC is what? It's cost to the company for employing you. So now whether that a particular portion forms part of your wages or not for PFESIC calculation, or whether it is part of salary, or whether it is not even part of salary but has to be paid later on the retirement, everything will be reflected in CTC because it's ultimately cost to the company. So you are right, but the thing is that we are not sure. Like for example, let's take an amount for better understanding. Okay, for example, 1 lakh is the variable amount. Okay, in your package in the CTC, whereas at the end of the year you get only 50 or 60K. So by default CTC you would look at the higher side, but actually what you would be getting would be on the lower side. So it creates various challenges in taxation also, and actually understanding what you would get. Got your point. So with respect to taxation, I would say कि जैसा संभव बता रहे थे, you have to plan on concurrent basis. So you have to see on quarter to quarter की कितना variable component मिला, तो अब उससे year on planning पे कितना दिख रहा है आपको कि कितना actually earning होने वाली है. Keep on planning simultaneously, right? So you can have a frequency set with you, and accordingly you can plan for your taxes. Coming to the CTC part, so now the organization, see if I take it as that no, it should not be part of CTC. Let us assume that
it should not be part of CTC. But how do we if I put this question from company's perspective, if I do not put this variable component in CTC path, then I am not reflecting the true cost to the company. And the company also is not sure whether how much variable portion the employee would achieve at the start of the year. So therefore, it needs to be part of CTC. It can be given, you can say it like my CTC is 13 lakhs, out of which 1 lakh is a variable component. This would be the right way to say this. But having said that, it will be part of a CTC. And with also the tax question that you are putting, so at the beginning of year you plan how you are going to do your investments. और फिर अगर आपको quarter to quarter या half yearly भी अगर आपको नहीं देखना है, analyze once more on the basis of all the variable pays that you have received. March में एक बार आप और assess करो what is the maximum you can again do to plan your tax. That is the best आप कर सकते हैं. अगर आपका pay for example 20 लाख तक चला जाता है variable pay होने के कारण, so you will have to pay tax. मतलब आप पूरा तरीके से उसको स्क्वीज नहीं कर सकते. तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है उसको या बेस्ट पॉसिबल प्रोविजन जो आप यूज कर सकते हो उसको आप मार्च में एक बार और रिविजिट करो. साल भर शुरू में आप एक बार एनालाइज करो कि ये मेरा सैलरी स्ट्रक्चर है, मेरे को इस तरीके से प्लान करना है ताकि मेरा कोई भी टैक्स ना आए. इफ यू गेट अ वेरिएबल पे या आपका बीच में इंक्रीमेंट हो जाता है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उस हिसाब से आप मार्च में फिर सारी चीजों को देख सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर दैट फाइनेंशियल.